Professor Kajal and I welcome you in my channel Kajal's Science. Students, today we are going to learn the part second of the grade 10 chemical equation and reactions, of which we are going to see the types of chemical reactions. In the previous video we seen about the part 1 of that is the chemical equation and the reactions. Today we are going to learn about the different types of chemical reaction. So let's begin that. Students, when we talk about the types of the chemical reactions, there are the different types of chemical reactions which are total 5. Okay, these are the combination reaction. Okay, this is the decomposition reaction, then displacement reaction, double displacement reaction, and oxidation reduction reaction. So these are altogether 5 chemical reactions which are we going to study this one in detail. So what happens for the examination point of view, it is very important topic and always being asked the questions on the basis of these types of reactions, either the combination or displacement, double displacement or redox reaction. Okay, so guys, please do attend properly because this is a very important topic for the 12th, for the 10th grade. So the first one is the combination reaction. Combination, अब combination का मतलब क्या होता है? To combine. अब यहाँ पर हम क्या कंबाइन कर रहे हैं? We are combining the reactants. Just like हमने पहले वीडियो में देखा था कि reactants किसे कहते हैं और products किसे कहते हैं. So reactants are those which are we kept before the arrow, and the products are we kept after the arrow. So this is what the reactant and products. Reactant we always kept in the left hand side and products we always kept on the right hand side. So the first one is the combination reaction. So see student, when we combining the reactants, like here calcium oxide is there along with water. Okay, so this calcium oxide, it is nothing but the quicklime, and this quicklime when we combine with water, when it reacts with water, what we get? We get the slake lime, that is the calcium hydroxide. Okay, so what it is happening? It is the combining, it is the combination. Both the reactors, they are combined together, they combine, and after that they get the slake lime, that is the calcium hydroxide. And you know what? This calcium hydroxide, this slake lime, where we are using? हम कहाँ use करते हैं slake lime को? We are using for this for white wash of our wall. जो हम walls, हमारे घर की walls जो होती है उसको white wash करते हैं, उसमें हम ये product use करते हैं. Actually what happens? ये जो स्लेक लाइम है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बहुत स्लोली, बहुत ग्रेजुअली रिएक्ट करता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपन, it took 2 to 3 days to be complete its reaction, chemical reaction, and उसके बाद हम जो रिजल्ट हमें मिलता है that is the shiny part. Okay, बहुत शाइनी होता है and बहुत स्लिपरी फीलिंग उस पर आती है. So this is because of the reaction of the slake lime over the carbon dioxide present in air. So this is what the example of combination reaction. So friends, चलो दूसरी रिएक्शन हम देखते हैं, उसके साथ ही हम कुछ और एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे कि कार्बन है, कार्बन that is the coal which is in the solid form, and जब ये ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है, हीट होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिल रहा है? We are getting carbon dioxide, and carbon dioxide क्या है? It is in the gaseous form. So जो यहाँ पर solid coal है, ऑक्सीजन गैस है, and we are getting the कार्बन डाइऑक्साइड which is also in the gases form. दूसरा एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो वाटर कैसे फॉर्म होता है, राइट? वेरी कॉमन एग्जांपल it is also the example of combination reaction. अब इसमें क्या हो रहा है? हाइड्रोजन गैस, ये गैस कंबाइन हो रहा है दूसरी गैस के साथ, दैट इज ऑक्सीजन. दोनों ही गैस है, दोनों ही रिएक्टेंट गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, एंड इन दोनों की कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिल रहा है? We are getting hydrogen oxide, that is in common word we can say that it is the water, and water we found that it is always in the form of what? Liquid form. ये होता है liquid form or aqueous form, right? Liquid. So by combination of the two gases, here we get one liquid, that is the water molecule. So these are the different examples of combination. You can also find out the different examples for your practice purpose also. Okay, now let's move to the next. Here the second one is the decomposition reaction. Decomposed, right? Decompose का मतलब क्या होता है?
कहीं स्प्लिट होना, स्प्लिट अप होना, किसी और चीज में स्प्लिट अप होना। तो यहाँ पर जो हमारा रिएक्शन है वो भी कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा है, राइट, डिकम्पोज हो रहा है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ लेट्स सी हियर लाइमस्टोन है हमारे पास, लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, ये कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज वी कैन आल्सो से दैट द चूना, राइट, जो हम चूना बोलते हैं। जब आप घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एक ग्लास में, कांच के ग्लास में आपको चूना लेना है, राइट, व्हाइट कलर का चूना, एंड ओवर टू दैट यू हैव टू पुट सम वाटर, या फिर आप डायरेक्ट वाटर में भी चूना डाल सकते हो। क्या आपको दिखाई देगा? इन 1 or 2 minutes इट स्टार्ट टू डिजॉल्व, ओके, वो डिसॉल्व होने लगेगा, साथ में कुछ एफरवेंसेस भी छोड़ेगा, कुछ बबल्स छोड़ेगा। अब ये बबल्स जो होंगे वो होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, एंड इफ यू टच दैट ग्लास, अगर आप उस ग्लास को, कांच के ग्लास को अगर टच करोगे तो व्हाट यू फील, अ लिटिल बिट चेंज इन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो वहाँ का जो पानी है उसके अंदर का, वो हमें थोड़ा सा गर्म लगेगा, right? So this is why, because of this calcium carbonate or this limestone, it become splits up into liquid lime, that is calcium oxide में और carbon dioxide में split हो रहा है, break हो रहा है, decompose हो रहा है, right? So इसीलिए that reaction it is called as the decomposition reaction. अगर हम दूसरा example इसका लेंगे तो वो है फेरस सल्फेट, ओके। अब फेरस सल्फेट ये सॉलिड फॉर्म में है, अगर हम उसको हीट देते हैं, राइट, हीट देते हैं, व्हाट विल गेट, हमें मिलता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। फेरिक ऑक्साइड ये भी हमें सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है, बट उसके साथ हमें क्या मिल रहा है, 2 तरह की गैसेस मिल रही है, एंड दीज 2 गैसेस आर सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये 2 गैसेस हमें मिल रही है। व्हाई दिस इज सो? यहाँ पर एक सिंगल प्रोडक्ट है, देखो स्टूडेंट सी, यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि सिंगल प्रोडक्ट है, सिंगल रिएक्टेंट है यहाँ पर, और प्रोडक्ट हमें एक से ज्यादा मिल रहे हैं, क्लियर? पहले रिएक्शन में क्या था, मोर देन 1 रिएक्टेंट्स आर देयर, ओनली सिंगल प्रोडक्ट्स फॉर्म। यहाँ पर क्या, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। बट इस रिएक्शन में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट है एंड इट स्प्लिट्स अप, इट ब्रेक्स इनटू द मोर देन 1 प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, सेकंड रिएक्शन में हमें फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड मिल रहा है। So in this way, the single reactant decompose into the various products. Fine. अब तीसरी हमारे पास है reaction, that is the displacement reaction. अब displace you know the word which means moves from one place to another. Displace हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। अब यहाँ पर कौन displace हो रहा है, जो particular substance है या जो particular वहाँ पर हमने chemical लिया है, element लिया है, it will be displaced, अपनी जगह से दूसरी जगह ऑक्युपाई करेगा। नाउ यहाँ पर अगर हमने फेरस को, आयरन को, ओके, हमने अगर आयरन को, आयरन रॉड है या आयरन नेल है, ओके, अगर हमने उसको एक सोल्यूशन दैट इज कॉल्ड एज अ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, जो ब्लूइश कलर का होता है, ओके, तो ये ब्लूइश कलर की कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में अगर हम उस नेल को डाल देते हैं, इंसर्ट करते हैं, so after some time we'll see that the chemical reaction takes place. अब यहाँ पर जो chemical reaction वो हो रही है डिस्प्लेसमेंट की, क्योंकि क्या होगा, जो आयरन नेल है वो अभी कॉपर सल्फेट में से सल्फेट सोल्यूशन के पास अटैच हो गया है, दैट मीन्स वो किसको डिस्प्लेस कर रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, राइट, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस करके उसकी जगह वो फिट हो रहा है, दैट मीन्स फेरस सल्फेट मिला, एंड फ्री कौन हो रहा है, यहाँ पर कॉपर हो रहा है। तो इसीलिए हम क्या देखते हैं, जो स्टार्टिंग में जो कलर था नेल का, उस आयरन नेल का, इट इज लिटिल बिट ब्राइट, ओके, एंड आफ्टर फॉर्मिंग द केमिकल रिएक्शन व्हाट वी सी दैट इट इज हैविंग द रस्टिंग एंड द सोल्यूशन बिकम फेड। जो ब्लूइश कलर का सोल्यूशन बताया मैंने, जो कॉपर सल्फेट का होता है, वो फेड हो जाएगा, बिकॉज वहां से कॉपर क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। फाइन, तो आर यू गेटिंग क्लियर, पिक्चर क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फेरस कॉपर सल्फेट के साथ जब कंबाइन हो रहा है तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है अपनी जगह से, एंड इंस्टेड ऑफ दैट द फेरस सल्फेट इट फॉर्म्स एंड द कॉपर रिमेन्स। तो ये हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम दूसरे भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि जिंक है, सेम इट हैपेंस। अब जिंक में क्या हो रहा है, ये जो जिंक है ये भी सॉलिड है आयरन की तरह, जब उसको हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालते हैं तो वो क्या करेगा,
यहाँ पर कॉपर को फिर से डिस्प्लेस कर देगा। जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा एंड कॉपर की जगह खुद आ जाएगा। तो कॉपर सल्फेट की जगह यहाँ पर कौन आ गया, जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट आ गया विच इज ऑलवेज इन द एक्वस फॉर्म एंड कॉपर डिस्प्लेस हो गया तो वो अलग रह जाएगा, तो विच इज आल्सो इन द सॉलिड फॉर्म। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे फुलफिल हो रही है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात एक है कि यहाँ पर जो है आपने दोनों एग्जाम्पल में देखा होगा सिर्फ एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा है, राइट। यहाँ पर जो है कॉपर डिस्प्लेस हो रहा है, यहाँ पर भी एक ही कॉपर डिस्प्लेस हो रहा है, ना कि यहाँ वहाँ दूसरा कुछ भी, सिंगल डिस्प्लेस। तो हम इसे या तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे या फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं। फाइन, अब नेक्स्ट स्टेज इसकी दैट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट क्या है, वो एक्वेस फॉर्म में है, ओके। एंड वो किसके साथ कॉम्बिनेशन कर रहा है, बेरियम क्लोराइड। फाइन, अब दोनों ही एक्वेस फॉर्म है, दोनों का फिजिकल स्टेट जो है, फिजिकल आइडेंटिटी जो है वो एक्वेस है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर दोनों ही तरफ से डिस्प्लेसमेंट बनेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट बनेगा। अब यहाँ पर सी देखिए, यहाँ पर BaCl2 है तो यहाँ पर BaSO4, ओके, BaSO4। यहाँ पर कौन डिस्प्लेस हो गया, यहाँ पर Na डिस्प्लेस हो गया एंड यहाँ पर हमें प्रोडक्ट के दूसरा मिला NaCl, तो Na यहाँ पर Cl और Na रिमेन हो गए। तो यहाँ पर दो तरह से हमें डिस्प्लेसमेंट मिल रही है, दो बार डिस्प्लेसमेंट मिल रही है। सो दैट इज व्हाई हम ये कहते हैं कि जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड एक साथ कंबाइन होते हैं तो वो एक ही तरह से डिस्प्लेस नहीं होते, दो बार दो चीजों को डिस्प्लेस करते। तो यहाँ पर क्या हो गया, बेरियम सल्फेट हो गया इंस्टेड ऑफ सोडियम सल्फेट, तो यहाँ से सोडियम निकल गया। फाइन, अब यहाँ पर बेरियम क्लोराइड है तो बेरियम क्लोराइड की जगह पर Ba निकल गया, वहां पर Na आ गया। तो इन दिस वे हियर two types of displacement it is happening at once, एक ही बार में दो बार, एक ही टाइम पे दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो ये जब ऐसे होता है कि एक ही टाइम पे दो बार डिस्प्लेसमेंट होती है तो हम उसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड गाइस बिलीव मी दिस इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। इस पर हमेशा ही क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, राइट। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को इस तरह से पूछा जाएगा कि जैसे फाइंड आउट which type of reaction it is, तो वहाँ पर किया जाएगा so and so reaction, reactant and product. You just have to find out whether it is displacement reaction or double displacement reaction or any of the others. Fine. Or in some time for 1 or for 2 marks it is being asked like write down the double displacement reaction and explain with example. So you have to write down the example like that. So in this way guys you will be asked the questions in the examination and this reaction is of much having the importance. Now after that the next one is the oxidation reduction reaction. See दो words है इसमें, oxidation है, reduction है and reaction. अब ये ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन भी हो रहा है, इन इस केमिकल रिएक्शन में दोनों ही चीजें हो रही है, राइट। ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। अब हम ये कब कहते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, जब कोई चीज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है या इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स द केमिकल रिएक्शन, राइट। अब जैसे कि यहाँ पर क्या है, कॉपर है। कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ उसको ऑक्सीजन के साथ हीट किया जाता है, उसे हीट करेंगे हम तो क्या मिलेगा हमें, कॉपर ऑक्साइड, राइट। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉपर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, राइट। यहाँ पर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको हीट मिल रही है, कॉपर को अगर हम कॉपर पाउडर को हीट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, वहां पर कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है, तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, कंबाइन कर रहा है, अपने साथ ले रहा है ऑक्सीजन को, इसलिए उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब दूसरी हमारे पास है रिडक्शन वाली। अब रिडक्शन मतलब क्या, रिड्यूस होना, ओके, इट इज लूजिंग नाउ। इसमें क्या किया, इसमें ऑक्सीडेशन में इसने गेन किया। अब रिडक्शन रिएक्शन में हम क्या देखने वाले कि वो लूज करता है। अब इसमें क्या होगा, सपोज फॉर एग्जांपल दिस प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन के बाद फॉर्म होने वाला है जो कॉपर ऑक्साइड है, अगर वो वाटर वेपर से या फिर वाटर से अगर उसको स्प्रिंकलाइज किया जाए या वाटर उसके ऊपर से वेपर्स अगर हम लेके जाए तो क्या होगा, वो रिवर्स रिएक्शन हमें पुट फोर्थ करेगा। अब वो रिवर्स रिएक्शन करेगा मतलब क्या करेगा, वो रिड्यूस करेगा ना खुद को।
पहली बार तो उसने खुद को ले लिया था, गेन किया था, तो वो कॉपर ऑक्साइड बना। अब कॉपर ऑक्साइड से वो लूज करेगा ऑक्सीजन बिकॉज इट इज द रिड्यूसिंग। तो वहां पर क्या होगा, CuO जब हाइड्रोजन गैस के वहां से जाने के बाद हीट दी जाएगी तो उससे हमें मिलेगा कॉपर अलग से एंड वाटर अलग से मिलेगा। सो दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड था, अब वो किससे रिड्यूस हो गया, कॉपर में रिड्यूस हो गया। राइट, गेटिंग द पॉइंट। यहाँ पर क्या हो रहा था, ऑक्सीजन उसने गेन किया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई, यहाँ पर ऑक्सीजन उसका रिड्यूस हुआ, तो यहाँ पर रिडक्शन हो गया। जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन भी हो गया। दूसरे इसमें रिवर्स में जब उसको हाइड्रोजन गैस उसके ऊपर से गई तो क्या हुआ, उसका रिडक्शन हो गया और वो अलग से वाटर में बन गया, वाटर एंड कॉपर फॉर्म हो गया। अब इसके साथ ही दूसरा अगर एग्जांपल हम लेना चाहते हैं तो वो है जिंक ऑक्साइड का। जिंक ऑक्साइड अगर कार्बन के साथ उसे हीट दी जाएगी, ओके, व्हाट विल गेट, जिंक हमें रिड्यूस फॉर्म में मिलेगा। सी यहाँ पर जिंक ऑक्साइड है, ये ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड है, ओके, जिंक ऑक्साइड ऑलरेडी ऑक्सीडाइज है। जब हम इसको कार्बन और हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो ब्रेकअप हो रहा है जिंक और हमें मिल रहा है साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड सिंगल ऑक्साइड है। तो इस तरह से ये क्या हो रहा है, यहाँ पर रिड्यूस्ड फॉर्म शो कर रहा है, तो यहाँ पर ये रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। सो गाइस हियर when we talk about this oxidation form as well as this reduction, both reaction takes place at once, then it is said to be the oxidation reaction or simply the redox reaction। redox मतलब redox, रेड रिडक्शन का रेड एंड ऑक्सीडेशन का ऑक्स, तो इस तरह से रिडक्शन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन फॉर्म होती है। सो गाइस यहाँ पर मैंने आपको केमिकल रिएक्शन के टाइप्स बताए। दीज आर द 5 कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड दैट इज द reduction, oxidation reduction reaction or redox reaction. So here we completed along with a lot of examples this oxidation reduction reaction as well as all the 5 types of the chemical reaction. So if you have any queries, please drop the message in my comment box, or if you like the video, do share, like and subscribe my channel. Thank you very much.